لیکن یہاں جو ہوا ہے وہ فرشتوں نے بھی پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا. یہاں پر یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے جس سے وہ راضی ہے سنا. ارے فرشتے تو خدا کے حضور گاتے تھے، فرشتے تو خدا کے حضور پرستش کرتے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہاں عجیب کام ہو کہ فرشتے زمین پر گا رہے ہیں، اور یہ اس سے پہلے آپ کو کہیں ملے گا نہیں کائنات کی تاریخ میں بھی. اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ فرشتوں کا سردار اس کی خبر دے رہا تھا جو فرشتوں کا بھی خالق ہے. مسیح خداوند کی پیدائش کی خبر دینے کے لیے فرشتوں کا سردار یہاں پر کھڑا ہے جبرائیل. اور فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ یہاں کھڑا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ جہاں یہ کھڑا ہے وہاں ہمارے خدا کی حضوری ہے اور وہی جگہ خدا کی پرستش کے لائق ہے. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. کتاب مقدس پر اعتراض کرنا ہر دور میں ایک فیشن رہا. جسے اپنا علم ہے یا نہیں اسے کتاب مقدس میں نقص بھی نظر آتے ہیں، مسائل بھی نظر آتے ہیں، اور اسے کتاب مقدس میں بے شمار غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو چند سال پہلے ایک شخص نے کہا کہ چرواہے سردیوں کے موسم میں باہر نہیں بیٹھتے، چرواہے سردیوں کے موسم میں جانوروں کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ جو موسم ہے جس میں مسیح خداوند کی پیدائش واقع ہوئی یہ سردیوں کا موسم ہو نہیں سکتا. میں جب آج صبح اس حوالے کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس بات پہ غور کیا کہ ہم نے آج نہیں اپنی پوری زندگی میں بے شمار ایسے لوگ دیکھیں جو سردیوں کے موسم میں بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے گرمیوں کے موسم میں کام کرتے ہیں. چرواہے ان پڑھ ہو سکتے ہیں، بے علم ہو سکتے ہیں، شاید عالم نہ ہو، لیکن حکمت سے خالی اور بے وقوف نہیں ہوتے. انہیں پتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی زندہ رکھنا ہے، انہیں جنگلی جانوروں سے بھی بچانا ہے اور انہیں بیماریوں سے بھی بچانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جانوروں کا علم رکھتے ہیں انہیں آج کے دور کی زبان میں ہم ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. تو قدیم دور کے چرواہے تقریباً ڈاکٹر ہی ہوتے تھے جو اپنے جانوروں کا علاج معالجہ بھی خود ہی کیا کرتے. اس لیے صریحاً یہ کہہ دینا کہ چرواہے سردیوں کے موسم میں باہر نہیں ہوتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہاں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ 25 دسمبر دراصل کرسمس کا وہ دن ہے جس دن مسیح خداوند پیدا ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں 25 دسمبر کو منانا چاہیے کیونکہ یہ وہ دن ہے جسے عالمگیر کلیسیا نے، پوری دنیا کی کلیسیا نے مل کر ٹھہرایا. اور ہم نہ یہودیوں کی نقل کرتے ہیں نہ کسی اور قوم کی، کیونکہ یہودی بھی عیدوں کے اوپر لڑا کرتے تھے
किताब मुकद्दस में भी आपको एक वाकया मिलेगा। एक फसा वो था जो मसीह यीशु ने खाया था और उसके बाद वो मसलूब हो गया, और एक फसा वो था जो मसीह यीशु को मसलूब करने वालों ने जाकर खाना था। यानी कि यहूदी भी ईदों के दिनों पर आपस में इख्तलाफ रखते थे, और आप जानते हैं कि बेशुमार अक़वाम हैं हमारे इस पूरी दुनिया में जिनकी ईदों के दिनों पे इख्तलाफ चलता रहता है। लेकिन हम मसीह खुदावन की इस दुनिया में आमद की इस हकीकत को याद इसलिए करते हैं क्योंकि आलमगीर कलीसिया पूरी दुनिया में इस दिन मुत्तफिका तौर पर इस खुशी को मनाती है कि दुनिया की तारीख में एक दिन ऐसा था जिस दिन कलाम मुजस्सम हुआ, फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो ये बात याद रखें कि हम 25 दिसंबर इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये आलमगीर कलीसिया की तरफ से मुकर्रर किया हुआ एक दिन है। जब मैं इस मतन को देख रहा था तो यहां एक वाकया है जो आपने हजारों दफा सुना होगा, सैकड़ों दफा पढ़ा होगा, और बेशुमार दफा इसकी तशरीह खुदावंद के कलाम में से आपने देखी होगी। चरवाहे हैं, खौफ है, डर है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें खुदा ने एक रूहानी तजुर्बे से गुजारा, एक रूहानी तजुर्बा जो यहूदी मुआशरे की तारीख में जब भी जाहिर हुआ तो उसने यहूदी कौम की किस्मत को बदल के रख दिया। वो तब जाहिर हुआ जब शरीयत दी गई, और जब भी उस तरह के वाकयात बनी इसराइल को दिखाई दिए तो तब उनके अंदर कुछ ना कुछ अजीबो गरीब काम हुआ। तो ये सादा लू लोग हैं, और इनके दरमियान जो हो रहा है तो सचमुच हमारे साथ भी होता तो हम डर और खौफ में मुब्तला हो जाते। जरा मेरे साथ देखिए 9वीं आयत। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मुसन्निफ जो है ना इस इंजील का, वो बहुत गहरा आदमी, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर, तबीब, और जो तबीब होते हैं उनकी जात का खासा होता है कि उन्हें बीमारी की जड़ तक पहुंचना होता है। इसलिए वो सवाल करते हैं बार बार, और जब तक वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो सवाल पूछते ही रहते हैं। जब उसने किताब मुकद्दस में इस हिस्से को लिखा होगा तो पता नहीं किस से उसने जाके पूछा होगा कि मुझे बताओ वहां क्या हुआ, मुझे बताओ और क्या हुआ, मुझे बताओ और क्या हुआ, मुझे बताओ और क्या हुआ। क्योंकि लूका जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो अल्फाज बहुत ही पेचीदा, वो लफ्ज खुदा नहीं इस्तेमाल करता, वो लफ्ज खुदावंद इस्तेमाल करता। आप जानते हैं कि इब्रानी में खुदा के 2 नाम हैं जो बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल हुए, एक यहोवा जिसे हम कहते हैं और दूसरा एलोहीम। अब ये 2 नाम पुराने अहदनामे के नाम हैं। जब ये नए अहदनामे में इस्तेमाल किए गए तो जो यहोवा था उसको कुरियोस कहा गया, और जो एलोहीम था उसको थियोस कहा गया। अब ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक खुदा का जाती नाम है जिसे हम उर्दू में इसमें मारफा भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो खुदा का कॉमन नाउन है जो एलोहीम है, और वो दीगर खुदाओं के लिए, बादशाहों के लिए और दीगर लोगों के लिए इस्तेमाल होता हुआ पुराने अहदनामे में दिखाई देता है। लेकिन जो लफ्ज यहोवा है ये किताब मुकद्दस के बहुत बड़े बड़े उस्तादों की तहकीक के मुताबिक इसराइल के खुदा के अलावा कभी भी किसी और खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इन 2 नामों को जब इब्रानी से
यूनानी में लेके जाया गया तो फर्क को कायम रखा गया। जब इन दो नामों को यूनानी से उर्दू में लाया गया तो भी फर्क को कायम रखा गया। जब यहोवा का लफ्ज यूनानी में गया तो वो कुरियोस बन गया, और जब उर्दू में आया तो उसे हमने खुदावंद कहा। और जो एलोहीम था, जब वो यूनानी में थियोस बन गया तो जब उसे उर्दू में लाया गया तो उसे खुदा कहा गया। इसलिए आपको दो उर्दू में नाम खुदा के बड़ी कसरत के साथ नजर आते हैं उर्दू बाइबल में, एक खुदा और दूसरा खुदावंद। जो लफ्ज खुदावंद है उसका अगर आप मतलब देखेंगे तो वो यूनानी में कुरियोस होगा और इब्रानी में यहोवा होगा। पहले तो फरिश्ते का आ जाना ही उनके लिए बड़ी खतरनाक बात थी। वो इंतजार कर रहे थे कि कोई जंगली जानवर आएगा, कोई भेड़िया आएगा जिससे हम अपने गले को बचाएंगे, कोई चोर आएगा, कोई डाकू आएगा और उससे हम अपने गले को बचाएंगे। लेकिन जो आ गया वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जो आ गया, खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। ये काफी था उनके हालात खराब कर देने के लिए, लेकिन उसके बाद जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया वो काबिल गौर है। खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। इन्होंने कहानियां सुनी होंगी कि खुदावन का जलाल जब आता है तो लोग खुदावन के हुजूर खिदमत नहीं कर पाते। खुदावन का जलाल जब आता है तो मूसा और उसके साथी जो है वो खैमा इज्तिमा में खिदमत का काम सरंजाम नहीं दे सकते थे। इन्होंने सुना होगा कि सुलेमानी हैकल में खुदावन का जलाल जब जाहिर हुआ, खुदावन का जलाल जब वहां जाहिर हुआ, इन्होंने चीजें सुनी हुई थी, लेकिन ये वक्त था इन्हें तजुर्बा हुआ। और उस तजुर्बे ने इनके साथ किया क्या? खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। 3 दिन तक अपने आप को पाक करना और उसके बाद पहाड़ के पास आना, लेकिन ज्यादा नजदीक मत आना वरना मर जाओगे। ये उस खुदा का जलाल है। और उससे डरना, खौफजदा होना या उससे लरजना, ये बड़ी आम सी बात है। और आगे देखें, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब होता है नजात देने वाला, और मसीह यस्सु का जो नाम है यस्सु, उसका मतलब है नजात देने वाला, गुनाहों से छुड़ाने वाला, लोगों की जिंदगियों को बंधनों से आजाद करने वाला। तो अगर उसने ये भी कहा होता तो काफी था कि यस्सु पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। अजीब बात है। ये 2021 का मुकाशफा है मेरी जात के लिए कि कायनात में बेशुमार लोगों ने नजात दहिंदा होने का दावा किया, लेकिन किसी का नाम निजात दहिंदा मुझे आज तक नहीं मिला। और मसीह का तो नाम ही निजात दहिंदा। ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है जो मैंने 2021 में सीखी। आगे चलते हैं। और उसके साथ तुम्हारे लिए एक निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। अच्छा, पहला तजर्बा फरिश्ता आ गया, दूसरा खुदावन का जलाल आ गया, और तीसरा तजुर्बा जो है ना, ये फरिश्ते के लिए भी है और मजूसियों के लिए भी, चरवाहों के लिए भी। क्योंकि अब जो होना है वो पहले कभी हुआ नहीं था। अब जो होना है इससे पहले वो कभी रूनुमा नहीं था। और वो क्या होना था? फरिश्ते खुदा के हुजूर खड़े होते हैं,
गुनगुनाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, कुदूस 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 कहते हैं और उसकी इबादत करते हैं। लेकिन यहां जो हुआ है वो फरिश्तों ने भी पहले कभी नहीं था देखा। यहां पर यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावंद की हम्द करती और कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों के लिए जिससे वो राजी है सुना। अरे फरिश्ते तो खुदा के हुजूर गाते थे, फरिश्ते तो खुदा के हुजूर प्रस्तिश करते हैं, उसके हुजूर खड़े होते हैं। लेकिन यहां अजीब काम हुआ कि फरिश्ते जमीन पर गा रहे हैं और ये इससे पहले आपको कहीं मिलेगा नहीं कायनात की तारीख में भी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि फरिश्तों का सरदार उसकी खबर दे रहा था जो फरिश्तों का भी खालिक है। इसी खुदावंद की पैदाइश की खबर देने के लिए फरिश्तों का सरदार यहां पर खड़ा है, जिब्राईल। और फरिश्तों ने जब देखा कि ये यहां खड़ा है तो उन्होंने समझा कि जहां ये खड़ा है वहां हमारे खुदा की हजूरी है और वही जगह खुदा की प्रस्तिश के लायक है। और उन्होंने वहीं खुदावंद की प्रस्तिश कर दी। 3 तजर्बे खुदा ने उनको दिए एक ही रात में। सादा से इंसानों को 3 तजर्बे मिले। पहले उन्होंने जिंदगी में शायद पहली दफा फरिश्ता देखा होगा, दूसरा खुदावंद का जलाल उन पे जाहिर हुआ, और तीसरी और आखिरी चीज कि जो मंजर कायनात ने कभी पहले नहीं था देखा वो इन्होंने देखा कि मसीह खुदावंद की प्रस्तिश करने के लिए फरिश्ते जमीन पर ही प्रस्तिश करना शुरू हो गए। लेकिन इसका असर क्या होगा, ये जरूरी बात है। और सबसे अहम भी यही है कि अगर कोई तजुर्बा रूहानी है और उसने आपको छुआ है और उस तजुर्बे का आप पे असर कोई नहीं हुआ तो वो तजुर्बा फिर आपके लिए नहीं था, हो सकता है वो किसी और के लिए। क्योंकि इनको जो तजुर्बा हुआ उसने तो इनकी जिंदगी बदल के रख दी। आगे चलते हैं 15वीं आयत। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। आपने देखा इस पूरे मतन में एक ही लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है, खुदावंद खुदावंद खुदावंद। यहूदी हैं और उनको एक ही खुदा का नाम आता है, यहोवा खुदा। उन्हें और किसी खुदा का नाम नहीं, सीधी सी बात। जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखे। पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया। उनकी जिंदगी में क्या होगा, जानवरों से डर रहे हैं, जानवरों से अपने भेड़ बकरियों को बचाने वाले लोग हैं। भेड़िए का डर होगा और जानवरों का डर होगा, चोरों का डर होगा। क्योंकि यहां जो ये बकरियां चरा रही हैं हैकल की मलकियत होती थी और ये हैकल में जाकर कुर्बान की जाती थी। ये जो भेड़ बकरियों की ये हिफाजत कर रहे, तो इनकी हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी थी। बीच में से कोई चोरी ना हो जाए, कोई जानवर ना ले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बीमार ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जानवर वही कुर्बान किया जाता था जो सेहतमंद होता था। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इनकी जिंदगी एक खौफ में जकड़ी हुई थी। कभी जानवरों का खौफ, कभी चोरों का खौफ, कभी बीमारियों का खौफ, कभी किसी और चीज का खौफ। लेकिन जब 3 तजर्बात आगे पीछे इनकी जिंदगी में आए तो सारे खौफ ही मिट गए, सारे डर ही मिट गए। और ये क्या बन गए, ये एवेंजलिस्ट बन गए।
असली इवेंजलिस्ट। दुख की बात है कि हमारे आजकल के पादरी साहबान और मुनाद अपनी भी इज्जत नहीं करते, अपना नाम भी सही नहीं लिखते। कई अपना नाम लिखते हैं PS। मैंने एक दिन गूगल पे चेक किया ये क्या होता है, तो पता चला ये जो फोटोशॉप होती है ना, प्रोग्राम जिससे तस्वीरें खराब करते हैं लोग, उसको फोटोशॉप कहते हैं। मैंने कहा फोटोशॉप PS होता है, तो PS पादरी कहां से बन गया? अरे जो अपना नाम इज्जत से नहीं लिख सकते वो कहां खिदमत करेंगे मसीह। कल मैं एक जगह पे इनवाइटेड था, वहां मैंने देखा कि इवेंजलिस्ट लिखा हुआ था। मैंने जिंदगी में इब्रानी और यूनानी में इवेंजलिस्ट, उर्दू में इवेंजलिस्ट, अंग्रेजी में इवेंजलिस्ट बेशुमार जगहों पे पढ़ा, और वो सारे ई से ही होते हैं, क्योंकि जो ग्रीक है ना उसमें ई से शुरू होती है खुशखबरी के लिए इस्तेमाल होने वाला इब्रानी लफ्ज, यूनानी लफ्ज। इवेंगेलियन से ही इवेंजलिज्म है और उसी से इवेंजलिस्ट है। कल मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा ए से इवेंजलिस्ट लिखा हुआ पढ़ा और मैं वहां सख्ते में आ गया। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल के तस्वीर खींची, तो जो मेरे साथ पादरी साहब थे कहते ये क्या कर रहे हैं आप, तस्वीर उतार रहे हैं, आपकी तो तस्वीरें लोग उतारते हैं। मैं कहा नहीं, ये इस लायक है कि इसकी तस्वीर मैं खींचूं। ये बात याद रखें, बनने से कोई नहीं बनता, जो होता है उसे बताने की जरूरत नहीं। हम लोगों से टाइटल मांग के हासिल कर सकते हैं, अपने आप को डॉक्टर, प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? खुदा करे कि हमारे लोग समझें कि ये तजुर्बा है जिसने जिंदगी को बदला है। वो फकीयों के पास भी गए हैं, फरीसियों के पास भी गए हैं, वहां पर मौजूद हर एक बंदे को बताते फिरे और लोग उनकी बातें सुनकर ताज्जुब कर रहे हैं, ये क्या बातें हो रही। लोग उनकी बातें सुन के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो रूहानी तजर्बात हुए हैं उन्होंने उनको अंदर से बदल के रख दिया। हम कब बदलेंगे? इतना खूबसूरत मुल्क है जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें आप कलाम की मुनादी कर सकते हैं, मसीहियों में और उन लोगों में भी जो मसीही नहीं है। हर तरह की आज़ादी है। कितने टीवी चैनल्स हैं हमारे, मैं तो हैरान होता हूँ, इतने ज्यादा टीवी चैनल्स हैं। तो खुदा ने हमें हर तरह का मौका दिया। काश जो रूहानी तजर्बात यहां खुदा ने बख्शे थे, उस जैसे रूहानी तजर्बात जो आपकी और हमारी जिंदगियों में हुए, अगर उन रूहानी तजर्बात से हम ऐसे मुनाद नहीं बन पाए जैसे ये चरवाहे मुनाद बन गए, तो हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें कलाम के मुनाद बनाए। क्योंकि अगर हम कलाम के मुनाद अच्छे बन गए, कलाम के दूसरों तक फैलाने और पहुंचाने वाले दुरुस्त लोग बन गए, तो फिर सारे काम दुरुस्त हो जाए। मैं अक्सर